Hello everyone, welcome to today's video on current affairs, important current affairs topics that are important for an examination point of view for Indian CDS. Let's go ahead without any further ado. Alright. So let's have a look at index first. What are we going to discuss today? We will discuss the challenges with the high seas treaty. We will discuss the Madhya Pradesh government position, what are the decentralized procurement system, and we will discuss about the heavy metals that have been found in the fishes of the Kaveri River. Alright, let's start. Now, let's look at the first topic of the day, the challenges with the high seas treaty. Alright, let's have a look at this. See, what is the high seas treaty? High seas treaty है क्या? It is a landmark agreement under the UN clause focusing on common heritage of humankind. It aims at equitable use and conservation of marine biodiversity beyond national jurisdictions. So ये actually है क्या? It is a very landmark agreement, एक बहुत ही important agreement है. ये agreement किसके अंदर साइन हुआ है? Under the UN CLOS. ठीक है? And इसका थीम क्या है? The theme is common heritage of humankind. अब ये करना क्या चाह रहे हैं? अगर आप इसके गोल को देखोगे, ये थीम चाहता है कि जो मराइन बायोडाइवर्सिटी है, मराइन बायोडाइवर्सिटी का मतलब समंदर के नीचे है, इन दी ओशंस, मराइन मींस सीज एंड ओशंस. सीज एंड ओशंस में जो बायोडाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फौना, उसको कंजर्व करना है. बट ऐसा नहीं कि यार ओशन का ये वाला इस पोर्शन के बायोडाइवर्सिटी को देखेगा, नहीं. ऐसा तीन स्टेप से कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड है. देश हम अलग अलग हो सकते हैं, बट एट द एंड वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड दीस मराइन बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फौना, दिस इज नथिंग बट आवर कॉमन हेरिटेज एज ह्यूमंस. ठीक है? तो ये ट्रीटी इसलिए ये बोलना चाह रहा है कि नेशनल जुरिडिक्शन के बाहर जाकर कि मैं किस देश का हूं, मैं उस देश के समंदर को हेल्प नहीं करूंगा. नो, out of any kind of borders and in a world beyond borders, you can say, we should come forward and countries should protect and conserve the marine biodiversity in the oceans. ठीक है? अब इस treaty से क्या हुआ? It introduced the marine protected areas, MPAs, the environmental impact assessments, IPAs, access and benefit sharing of marine genetic resources, NGRs, and technology transfer for developing efficiency. है क्या है? लेकिन marine protected areas बेसिकली समुद्र में कुछ protected areas है जहां पे आप उतर में human interference नहीं कर सकते. Maybe because that area is protecting some kind of sensitive species of flora. तो protection के लिए इन areas को it's like you can say जमीन पे जैसे नेशनल पार्क्स होते हैं, they are like protected areas of the oceans. Then environmental impact assessment, अगर आपको जैसे इंडिया में कोई असेसमेंट होता है, अगर किसी को कोई समुद्र के पास या फिर नेचुरल एरिया के पास कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री बनाना है, तो इंडस्ट्री बनने के पहले उस इंडस्ट्री का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है कि अगर नदी के पास कोस्ट में ये इंडस्ट्री बन रहा है, समंदर के पास ये बन रहा है, तो ये इंडस्ट्री बनने के बाद सामने के समंदर पे, ओशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. अगर इफेक्ट ज्यादा नेगेटिव होता है, असेसमेंट नेगेटिव आता है, इंडस्ट्री बनना खराब नहीं होता. If we see that the damage is next to nil or very less damage, इससे फर्क नहीं पड़ेगा. Only in that case industries are allowed to operate. Then we have access and benefit sharing of marine genetic resources. देखो marine animals के जो genetic data है ना हमारे पास, तो genetic data हमारे पास marine organisms का है, उसका एक्सेस कैसे करना है और उससे बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं, दैट इज कवर्ड बाय द एनजीआर. और जो डेवलपिंग नेशंस हैं जिनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है टू प्रोटेक्ट देयर मराइन बायोडाइवर्सिटी, दे शुड नीड हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम द डेवलप्ड नेशन ताकि खुद को डेवलप कर पाए और अपने समंदर के ऑर्गेनिजम्स को बचा पाए. ठीक है? अब ये जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी के नेगोशिएशन स्टार्ट हुए थे, इट बिगैन इन द ईयर 2004, आज से 21 इयर्स बैक.
ठीक है। Then this treaty was formally adopted in June 2023. So जो कितना negotiation हुआ है, but 19 years negotiations carried on, and then the treaty was formally adopted on June 2023. और ये अभी तक फोर्स में आया भी नहीं है. It will come into force next year in January 2026. ठीक है. अब कितने देशों ने रेटिफाई किया है? रेटिफाई करना मतलब कितने देशों ने फॉर्मली इसको एक्सेप्ट कर लिया है? 60 कंट्रीज हैव रेटिफाइड दिस ट्रीटी. ठीक है. और ये प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का ओवर रीचिंग बहुत ज्यादा कर लिया एक एरिया में, उस एरिया से मछलियां बहुत कम हो. क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशंस का सी लेवल बढ़ रहा है. क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट है, इट इज हार्मिंग एल्गल पॉपुलेशन ऑन द सरफेस, एंड आल्सो पोल्यूशन. इंडस्ट्री से हमारे डोमेस्टिक यूसेज और गार्बेज और जो भी एफ्लुएंट्स निकलते हैं, दे आर गोइंग इनटू द ओशंस, दे आर डिस्ट्रॉयिंग द ओशंस. इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? अभी लेट्स लुक एट की जो ट्रीटी है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेजर चैलेंजेस क्या फेस कर रही है? सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है कि यार एक होता है कि कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड. कॉमन हेरिटेज जब ह्यूमन काइंड बोलने का मतलब ये है कि कोई भी देश किसी और देश के ओशन की क्रिएटिविटी में जाए, उनके बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प कर सकते. और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि फ्रीडम ऑफ हाईसीज. फ्रीडम ऑफ हाईसीज का मतलब है कि मेरा एरिया है, मेरा ओशन है, जैसे दूसरा बंदा आ जाता है मेरे ओशन के एरिया में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के नाम पर, तो वो मेरे एरिया में घुस गया, and this may affect my freedom in my ocean area. आगे चल के मेरे लिए डिटोरेटिव हो सकता है. ठीक है. then heritage study concerns lacks clear mechanism for equitable distribution of MGR. अभी जो MGR था कि मराइन ऑर्गेनिजम्स के जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उसको कैसे यूज किया जाएगा, तो कौन से देश को कितना यूज मिलेगा, सारे देश को एक इक्वल यूज मिलेगा या नहीं, जिसको जितना जरूरत है उसको उतना बेनिफिट मिलेगा कि नहीं एनजीआर का, उसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है. फिर जो की पावर्स है दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज लाइक द यूएस, चाइना एंड रशिया, दे हैव नॉट रैटिफाइड दिस पर्टिकुलर ट्रीटी. अब जब पावरफुल नेशंस ऐसी ट्रीटी को नहीं करेंगे, इस ट्रीटी को एनफोर्स करना, इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. क्योंकि बहुत सारा फंडिंग बड़े बड़े देशों से ही तो आता है. प्लस the INC and the IFMOs, they are already dealing with this particular kind of land conservation. ठीक है. तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन है उसका जो जुरिसडिक्शन इंस्टीट्यूशन के बीच में, देन इम्प्लीमेंटेशन क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है, और डेवलपिंग नेशंस के पास टेक्नोलॉजी है नहीं ये सब इम्प्लीमेंट करने का, तो इनको टेक्नोलॉजी मिलेगा, तो इम्प्लीमेंटेशन का क्या बन जाता है. नाउ लेट्स सी कि ये हाई सीज ट्रीटी का सिग्निफिकेंस क्या है. देखो इसका एम क्या है कि ओशन को कंजर्व करना है, ओशन के बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है. बिकॉज ऑफ दिस हमारे ओशन का जो सस्टेनेबल यूज है वो हो पाएगा. बिकॉज ऑफ दिस हम जो ओशन के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, वी विल यूज इट इन अ मोर सस्टेनेबल ऐसे हम उसको थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे, तो बहुत सारा रिसोर्स हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा, एंड लीविंग हिम सोर्सेज वेरी वेरी लॉन्ग टर्म. ठीक है. प्लस इसका मोटिव क्या था कि कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड. दिस इज ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल द कंट्रीज टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज. कि एनवायरनमेंट किसी एक देश का अकेले का इशू नहीं है, वो सारे देशों का, इंसानों का, ह्यूमंस का कॉमन इशू है. सो ये बेसिकली ग्लोबल लेवल पे एनवायरमेंटल कोऑपरेशन करवा रहा है. दैट कंट्रीज शुड कम टुगेदर एट अ ग्लोबल लेवल टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. ठीक है. तो वो तो नहीं पाया, बट एनजीआर से क्या ट्राई कर रहे हैं कि ओशन से हमें जो भी रिसोर्सेज मिले उसको इक्विटेबल वे में डिस्ट्रीब्यूट करना है. जिसको जितना जरूरत है उसको अपनी जरूरत के हिसाब से, ना ज्यादा ना कम, उसको उतना रिसोर्स का एक्सेस हो पाए. ठीक है. देन
आप देखो तो साइंटिफिक रिसर्च एनकरेज करेगा, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस के पास ये टेक्नोलॉजी है नहीं। और अगर डेवलप्ड नेशंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो डेवलपिंग नेशंस को टेक्नोलॉजी मिलेगा कहाँ से? उनके पास उनके ऑप्शन नहीं है, उनको खुद ही बनाना। सो दे विल हैव टू प्रमोट देयर साइंटिफिक रिसर्च। तो इस इनिशिएटिव से ये डेवलपिंग नेशंस अपना रिसर्च और प्रमोट करेंगे, सो दैट दे विल कम अप विद टेक्नोलॉजीज टू प्रोटेक्ट पीपल। ठीक है। प्लस जो एसडीजी गोल 14 है, which says life below earth, sorry, life below water, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है हमारे पास। उसमें जो गोल नंबर 14 है कि लाइफ बिलो वाटर, कि पानी के नीचे का जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है हमारा, उसको बचाना है हमें। दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव विल हेल्प इन अचीविंग द एसडीजी नंबर 14। That was it from the first topic. Now we move on to the next topic of it. The NP government is seeking an exit from the decentralized procurement system. ठीक है, तो ये है क्या? तो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स की सरकार लोगों तक पहुंचाने के लिए जो फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है, अपने पास लाती है, दैट इज नॉन एज प्रोक्योरमेंट। ये है सरकार का फूड प्रोक्योरमेंट। ठीक है। अब प्रोक्योरमेंट के दो सिस्टम्स हैं। ठीक है। अंडर द एनएफएसए एंड टीडीएस, एनएफएसए इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट and TDS is the public distribution system. Under these two schemes, there are two procurement systems for state governments. पहला centralized procurement scheme. Centralized procurement scheme में क्या होता है? इसका मैनेजमेंट एफसीआई करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। The Food Corporation of India manages the food procurement of the government. दूसरा है decentralized procurement. Decentralized procurement में क्या होता है? The management of this is done by the state governments. ठीक है, क्योंकि एफसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है जो सीपीएस में काम कर रही है। सीपीसी में होता यह है कि सेंट्रल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट खुद प्रोक्योरमेंट को मैनेज कर रही है। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है दे वांट टू ऑप्ट आउट ऑफ डीसी। क्यों? क्योंकि इससे हमें बहुत सारा लॉस होता है और हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेन कि अगर हम एफसीआई के थ्रू सीपीएस के थ्रू डायरेक्टली, तो पीसीपी करने से हमारा एक्स्ट्रा एक फाइनेंशियल खर्चा हो रहा है। ये फाइनेंशियल स्ट्रेन हमारे ऊपर भी ऑप्ट आउट। ठीक है। जो सीएम है मध्य प्रदेश के मोहन यादव, he basically wrote to the central government that now he wants to opt out of DCP and he wants to opt for CPS, जहां पे सारा मैनेजमेंट का काम एफसीआई करे। अब देखते हैं कि ये जो डीसीपी सिस्टम है इसके कुछ एडवांटेजेस और चैलेंजेस क्या है। डीसीपी का एडवांटेज ये है कि अगर एफसीआई के थ्रू प्रोक्योर हो गया है तो ट्रांसपोर्ट हो गया है हमारे स्टेट में, और अगर डीसीपी के थ्रू करोगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि तुम लोकली स्टेट गवर्नमेंट भी अपने स्टेट में इसको प्रोक्योर कर ले रहे हो और लोकल अथॉरिटीज अगर ये करती है तो फटाफट से ये गवर्नमेंट तक पहुंच भी जाता है। ठीक है। प्लस एक स्टेट में जो अलग अलग रीजियंस है, अलग अलग रीजियंस के जितने भी रीजनल नीड्स है वो सेंटर से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट को बेटर मानते। अगर डीसीपी के थ्रू फूड ग्रेन जाते हैं देन जो रीजन वाइज डेवलपमेंट होता है कि कहां पर कितना भेजना है देना है वो ज्यादा बेटर हो पाता है डीसी। ठीक है। दूसरा कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इससे वो होता है कि फेडरलिज्म क्या कहता है? फेडरलिज्म कहता है कि जब भी सेंटर में गवर्नमेंट हो और अलग अलग रीजन में स्टेट गवर्नमेंट हो तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा एक फेडरल स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किए बिना झगड़ा किए चलना चाहिए, दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो जब स्टेट और गवर्नमेंट दोनों का फेडरलिज्म तभी चलेगा। पीसीपी में क्या होता है? स्टेट अपना काम खुद करता है, स्टेट प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये ऑल्सो प्रमोट्स क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट खुद से काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाए। डीसीपी के चैलेंजेस क्या है? अब देखो डीसीपी जब स्टेट कर रही है
लोकल प्रोक्योरमेंट में खर्चा स्टेट का है, पूरा सेंटर इसमें कोई पैसा नहीं देता, तो स्टेट के लिए ये एक्स्ट्रा कॉस्ट बन जाता है। ठीक है, ऊपर से इस कॉस्ट में से थोड़ा कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को रिइंबर्स कर देती है, बट इन रिइंबर्समेंट्स को आते आते बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पास होते हैं, डिस्कस होते हैं पार्लियामेंट में, फिर ही आता है, तो एक डिले से एक इशू बन जाता है। और दूसरा, एफसीआई के पास लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टिंग है, और वेयर हाउसिंग जो है स्टोरेज का, एफसीआई के पास स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेट के पास उतना अच्छा नहीं है, तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट अच्छा ना हो तो सामान खराब हो सकता है। दैट इज नॉट द केस फॉर एफ। ठीक है, now let's look at some bigger issues and implications of the CB। ठीक है, बस एमपी ही नहीं है, और भी स्टेट्स है, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, these four states have also raised concern regarding the physics system की भाई, इसमें हमारा खर्चा बहुत हो रहा है, खाना वेस्ट भी होता है, खराब होता है, स्टोरेज अच्छा नहीं है, वी वांट इट टू बी ऐसे, वी आर प्रोबब्ली दिस, प्लस ये कॉस्ट रिइंबर्समेंट में जो डिले होता है, इसकी वजह से स्टेट को पैसे का पैसे होने लगा। ठीक है, अब जो डीसीपी है, डीसीपी में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एफटीआई जब एक सेंट्रल लेवल पे काम करता है तो वो एक यूनिफॉर्म तरीके से काम, डीसीपी में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, स्टेट जब जितना पैसा दे पाएगा उतना ही दे पाएगा, उससे ज्यादा प्रोग्राम नहीं कर पाता, बट एफटीआई एक यूनिफॉर्म तरीके से काम करता है, एफटीआई मेथड कैन बी सस्टेनेबल इन द लॉन्ग टर्म, but DCP cannot be sustainable for a long term financial stability. Plus, balancing decentralization with fiscal responsibility remains key for food security reforms. देखो, डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी है, एंड ज्यादा पावर एक जगह जाना जाना गलत बात, बट फूड सिक्योरिटी का जो बात है ना, कि सही अमाउंट ऑफ फूड सही लोगों तक पहुंचे, वो खराब ना, तो फूड सिक्योरिटी को डिसेंट्रलाइजेशन के साथ बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तभी जाके टिकट कम हुआ बेटर सर्विस। Now, that was it from the last topic. Now, coming to the next topic, which is that heavy metals have been found in the fishes of the Kaveri River. ठीक है, Kaveri River flows through many regions. ठीक है, तो कावेरी रिवर का जो त्रिची, इरोड और मेथुर रीजन है, इन रीजन में कुछ कुछ फिशेस को टेस्ट करने के बाद यह मिला है कि इन फिशेस में हेवी मेटल कंटेंट प्रेजेंट। ठीक है, हेवी मेटल्स कैसे? The metals which actually have a higher atomic number in the periodic table, I am talking in terms of chemistry and science, that metals who have a high atomic number in the periodic table are termed as heavy metals. ठीक है, तो कैसे मेटल्स मिले हैं? ये कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर एंड जिंक, ये सब मेटल्स नहीं होने चाहिए फिश, which is harmful and poisonous for us when we eat the fish. So this is a very dangerous thing. Now, देखो जब फिशेस है कि कभी कभी फिशेस खुद भी तो न्यूट्रिएंट्स लेती है, सिंक वगैरह फिश का हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, बट डब्ल्यूएचओ और एफएओ दे हैव प्रिस्क्राइब्ड सम सेफ्टी लिमिट्स कि ये मिनरल्स, ये मेटल्स अगर फिश में मिले बट एक पर्टिकुलर लिमिट के नीचे मिले देन इट्स फाइन, बट अगर इनका जो कंटेंट है फिशेस, अगर वो कंटेंट एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्रॉस कर गया, then that level is very very dangerous. तो WHO और FAO के जो सेफ्टी लिमिट्स है, the content amount of these metals has been found to be exceeding these levels. ठीक है, प्लस सबसे खराब हालत तो मेट्टूर रीजन का है। अब मेट्टूर रीजन का हालत इतना खराब क्यों है? क्योंकि वहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, और वहां पे एग्रीकल्चर करने के बाद जो एग्रीकल्चर जो इरिगेशन होने के बाद जो पानी रह जाता है, रन ऑफ हो जाता है खेत, उसको एक पूरा रिवर में वो कर दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है, एंड लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द मेट्रो रीजन इज डिस्पोजेबल कार्बन। तो दिस इज द बिग प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये स्टडी किसने किया है? दिस स्टडी हैज बीन डन बाय द भारत की 10 यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इस स्टडी को पब्लिश किया गया है इन द एनवायरमेंटल साइंस एंड परमिशन रिसर्च जर्नल। ठीक है, इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय द भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी
in the Environmental Science and Pollution Research Journal. अब इसके कॉजेस क्या है, ये जो हुआ इसके कॉजेस क्या है? सबसे पहला कॉज इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये जो डाइंग यूनिट्स है जहां पर रन किया जाता है कैंडीज एंड डाइंग यूनिट्स जो है, ठीक है, यहां से जो फैक्ट्री वगैरह से इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स निकलते हैं, फैक्ट्री का जो वेस्ट निकलता है ये सब नदी में जाता है एंड दिस फैक्ट्री वेस्ट कंटेन्स ऑल काइंड्स ऑफ दिस हेवी मेटल्स। ये पानी में मिक्स हो जाता है, पानी से फिशेस में जाता है। सेकंड वन एग्रीकल्चरल रुनऑफ। तो एग्रीकल्चर इरिगेशन लेते हो, एग्रीकल्चर में we use pesticides and insecticides which have many chemicals, inorganic chemicals that contain these heavy metals. तो जैसे इरिगेशन के पानी से धोया जाता है फील्ड को, वो वाटर जब रन ऑफ करके खेत से निकलता है तो खेत से थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड लेकर भी निकलता है और ये पेस्टिसाइड पानी के साथ जाके नदी में मिक्स होता है। नेक्स्ट जो अर्बन सीवेज है, मतलब शहरों का जो गार्बेज है बेसिकली जो आप फेंकते हैं घर से, ठीक है, उसके बाद सेडिमेंट एक्यूमुलेशन। सेडिमेंट एक्यूमुलेशन मतलब जो नदी में बह के इधर उधर से सेडिमेंट्स आ रहे हैं पत्थर टूट के, उनका जब एक्यूमुलेशन नदी में ज्यादा होने लगता है उसकी वजह से भी हेवी मेटल कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। अब वी नो द कॉजेस। अब इसके होने के बाद इंपैक्ट क्या होगा, हाउ इट इंपैक्ट अस। फर्स्ट इज बायो एक्यूमुलेशन इन फिशेस। बायो एक्यूमुलेशन क्या है समझिए, एक फूड चेन होता है, ठीक है। अब फूड चेन में क्या होगा, जैसे हम पानी में या फैक्ट्री से वेस्ट गिराएंगे, ये वेस्ट जाकर पानी में मिक्स हो जाएगा, वो पानी छोटे मछलियों में जाएगा, छोटी मछलियां उस टॉक्सिक पानी को अंदर लेगी और इतना भी टॉक्सिक हेवी मेटल है वो छोटी मछलियों के अंदर भी जाएगा। फिर छोटी मछली को बड़ी मछलियां खाएगी, बड़ी मछलियां जब उसको खाएंगी तो बड़ी मछलियों के अंदर भी वो टॉक्सिक हेवी मेटल चला जाएगा छोटी मछली। So now what's happening? The big fishes are now containing heavy metal. फिर हम बिग फिशेस को खाएंगे फिशिंग करके निकाला मार्केट से खरीद, तो वो जो बड़े फिशेस में जो हेवी मेटल्स है वो हमारे बॉडी में आएंगे एंड वी विल कीप ईटिंग द फिशेस एज अ पार्ट ऑफ आवर डाइट एंड एज अ रिजल्ट these minerals and metals will keep accumulating in our body. These toxic minerals will keep accumulating in our body through another organism that we are eating. This process is known as bioaccumulation. ठीक है, इस हेवी मेटल्स के कारण फिश और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में बायो एक्यूमुलेशन हो, ठीक है। दूसरा फूड चेन डिसरप्ट होता है। फूड चेन कैसे डिसरप्ट होगा, पानी जो है वो टॉक्सिक पानी जा रहा है छोटी मछली, छोटी मछली हेवी मेटल से मर सकती है पानी, और छोटी मछलियां मर गई तो छोटी मछलियां बचेंगी कहां, तो बड़ी मछलियां छोटी मछली को खाती है। If the small fishes and the small organisms are dead, what will the bigger aquatic organisms eat? There will be a whole distortion in the food chain. Plus, there will be loss of biodiversity as well because of these poisonous metals. Many aquatic organisms are going to die because of toxicity. ठीक है, प्लस ये जो पानी में नॉन बायोडिग्रेडेबल मेटल्स सब जा रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो सॉइल में मिक्स या डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ये पानी को हम बाद में क्रॉप्स में ग्राउंड में ग्राउंड वाटर यूज करेंगे, ये तो जमीन उसका होगा नदी के पानी। व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस मेटल्स। तो नदी का पानी जब हम इरिगेशन के लिए लाए ना, तो इरिगेशन के पानी में भी हेवी मेटल होगा जिस हाथ, फिर नदी के पानी में जब हम किस पर्पस के लिए लाए हैं उसमें भी मेटल होगा विच सेकंड हाफ से। ठीक है, what do we need to stop this? The first thing that we need is strict enforcement for effluent discharge. कि भाई जो इंडस्ट्रीज और कंपनीज है उनको जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट पानी में डालने से रोको, ये जो कैजुअल डिस्चार्ज कर रहे हैं ना एफ्लुएंट्स का, इसको रोको। The effluents should be first properly treated so that all toxicity is removed. Only then the effluent should be released into the water or the effluent should be discharged with strict enforcement also. अगर कोई ये काम नहीं कर रहा है, that person should be heavily penalized.
कि अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है इसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। नेक्स्ट, emphasizes importance of river rejuvenation and industrial regulation. दो चीजें, रिवर रिजुविनेशन। रिवर रिजुविनेशन का मतलब होता है कि रिवर को साफ करना, पॉल्यूटेंट्स हटाना, रिवर में एक्वाटिक लाइफ बढ़ाना, दिस इज रिवर रिजुविनेशन। तो कावेरी का रिवर रिजुविनेशन बहुत नेसेसरी है, इंडस्ट्री को रेगुलेट करना नेसेसरी है, क्योंकि इंडस्ट्री जो भी वेस्ट निकाल रहा है वो ना निकाला, ट्रीट करके निकाला, और नदी के पास ज्यादा इंडस्ट्री ना बना। तो ये इंडस्ट्री ज्यादा होगी तो तुम जितना ट्रीट कर लो, रेगुलेट कर लो, उतना वेस्ट निकलेगा, रोक नहीं पाओ। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज नियर द रिवर शुड बी रेगुलेटेड। दूसरा, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो है उसको इंडिया के एनवायरमेंटल पॉलिसी में लाना चाहिए। सीधा सीधा कि इंडिया का एनवायरमेंटल पॉलिसी ऐसा हो कि सारे नदी का पानी हर रीजन में एट अ रेगुलर बेसिस द वाटर क्वालिटी शुड बी मॉनिटर्ड, और जैसे कुछ गड़बड़ हुई है इमीडिएटली मेजर शुड बी टेकन टू रिजुविनेट द रिवर। दूसरा, कम्युनिटी अवेयरनेस होना चाहिए। इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, पुलिस, एनफोर्समेंट सब हो जाएगा, बट मेन चेंज तभी आएगा जब वी एज ए कम्युनिटी विल अवेयर हो। फर्स्ट फिश कंजम्पशन को लेकर अवेयर हो, we as a community, all of us, a lot of us consume fish, so we should be aware कि अगर किसी रीजन के पानी में heavy metals मिल रहे हैं, we should be aware enough to not consume fish from those areas because they will be harmful for us, and we as a community should also contribute. हमें as community, as citizens of India should contribute, we must contribute to protect the biodiversity as well. कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि रिवर का पोल्यूशन हो रहा है, आप उसको साफ कर सकते हो, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो एज कम्युनिटी पर्सन, यू शुड बी डूइंग इट। ठीक है, सो इवन दो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू, बट विद प्रॉपर रेगुलेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन दिस कैन बी सॉल्व। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेस क्लास ऑन करंट अफेयर्स। I hope it was a very useful session for all of you. Go through the video carefully, see the topics, listen to what I just explained. Very, very best of luck. All the best for preparation with your NDA and CGS examinations. Okay. Have a good day. Jai Hind.